Hello dear students, today we are going to start Maths Part 2 Complex Numbers Exercise 1.3. Now see question number 5. Express the following in the form of x plus I y, where x is real part and y is an imaginary part. Your first question is root 3 multiplied by cos pi by 6 plus I sin pi by 6. So it is equal to root 3 and cos pi by 6 means cos 30 degree and cos 30 degree equal to root 3 upon 2 plus I as it is into sin pi by 6, that is sin 30 degree, and sin 30 degree is half. So we get root 3 into root 3 upon 2 plus I into half. Now multiplying by root 3 in the bracket, we get root 3 into root 3 by 2, 3 upon 2 plus root 3 into I into half equals root 3 upon 2 into I. So which is of the form x plus I y. और अपने अगर फॉर्मूला किसी को नहीं बांट है cos and sin values, so you can check here cos pi by 6 equal to root 3 upon 2 and sin pi by 6 equal to 1 by 2. Now second, root 2 into cos 7 pi upon 4 plus I into sin 7 pi upon 4. So root 2 as it is for 7 pi upon 4, we write here 2 pi minus pi upon 4 because 2 pi minus pi upon 4 equal to 7 pi upon 4. Similarly, for sin 7 pi upon 4, we write here sin 2 pi minus pi upon 4. Therefore, it is equal to root 2 multiplied by cos 2 pi minus pi upon 4 plus I into sin 2 pi minus pi upon 4. But 2 pi minus pi upon 4 for cos, you can check the formula first. Since cos 2 pi minus theta, cos 2 pi minus theta means it lies in fourth quadrant, and we know that very well cos will be positive in fourth quadrant. So cos 2 pi minus theta equal to cos theta, and sin 2 pi minus theta is minus sin theta because sin is negative in the fourth quadrant. So cos 2 pi minus pi upon 4 becomes cos pi upon 4 according to this formula, and sin 2 pi minus pi upon 4 becomes minus sin pi by 4 according to this formula. Sin 2 pi minus theta is minus sin theta. So we write here minus sin pi upon 4. So we get root 2 into cos pi upon 4 plus I into minus sin pi upon 4. Now substituting the values, you know very well cos 45 degree is known as here pi by 4. So cos pi by 4 or cos 45 degree, here sin pi by 4 or sin 45 degree. So we get root 2 into cos pi upon 4 is 1 by root 2. Here plus into minus becomes minus. I as it is sin pi by 4 1 by root 2. Now multiplying by root 2 in the bracket, we get root 2 into 1 by root 2 1, and root 2 into minus I upon root 2, that is I. So it is equal to 1 minus I, which is of the form x plus I y. In case अगर मान लो कि पूछा जाता है कि find the values of x and y also, so comparing these two terms we get x equal to 1 and y equal to minus 1. और ऐसे ही previous question में भी find out कर सकते हो values of x and y. x is 3 upon 2 and y is root 3 upon 2 by comparing this term. लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ही शो करना है कि write the given expression, write the given terms in the form of x plus I y. इतना ही करके छोड़ देना है. तो एक्स वाई की वैल्यूज नहीं पूछी गई है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीईटी एग्जाम में पूछा जाता है तो यू कैन कंपेयर एंड राइट योर करेक्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. समटाइम्स दे कैन आस्क फाइंड एक्स प्लस वाई, फाइंड एक्स कामा वाई, फाइंड एक्स माइनस वाई, फाइंड एक्स अपॉन वाई एंड फाइंड एक्स इनटू वाई. so they can ask anyone for the competitive exams. ये किसके लिए हैं? कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए. तो जो स्टूडेंट कम्पिटेटिव एग्जाम में इंटरेस्ट रखते हैं और देना चाहते हैं तो वो लोग इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी आंसर निकालना सीखें. नाउ सी थर्ड वन, 7 मल्टीप्लाइड बाय कॉस माइनस 5 पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन माइनस 5 पाई अपॉन 6. तो इसके एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला देखते हैं कि कॉस ऑफ माइनस 5 पाई अपॉन 6 सिमिलर टू दिस कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, एंड साइन माइनस 5 पाई अपॉन 6 के लिए sin of minus theta equal to minus sin theta. So using these two formulae in the first step we get it is equal to 7 into cos 5 pi by 6
माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस 5 पाई अपॉन 6 बिकम्स माइनस साइन 5 पाई अपॉन 6, तो प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस आई इंटू साइन 5 पाई अपॉन 6। अब ये 5 पाई अपॉन 6 के डायरेक्ट वैल्यूज तो पता नहीं है, तो इनको फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रांसफर कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, जो हमारे पास फार्मूले अवेलेबल है। तो 5 पाई अपॉन 6 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई अपॉन 6 एंड हियर साइन 5 पाई अपॉन 6 साइन पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो फिर से देख लेते हैं, इट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 6 माइनस आई इंटू साइन पाई माइनस पाई अपॉन 6। बट कॉस पाई माइनस थीटा, फिर से इसका फॉर्मूला आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। तो सपोज करो कि थीटा है, तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो इट इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस कॉस पाई अपॉन 6 माइनस आई साइन पाई माइनस साइन पाई बाय माइनस पाई बाय 6 इज साइन पाई बाय 6। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं, ये पॉजिटिव रहता है और ये नेगेटिव हो जाता है। तो 7 इंटू माइनस कॉस पाई अपॉन 6 माइनस आई इंटू साइन पाई अपॉन 6। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, जैसा कि जानते हो कि पाई अपॉन 6 क्या है, 30 डिग्री, तो 7 इंटू माइनस कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2 माइनस आई इंटू साइन 30 हाफ, तो इट इज इक्वल टू माइनस 7 √3/2 माइनस 7/2 इंटू आई, विच इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई। तो x इक्वल टू माइनस 7 √3/2 एंड y इक्वल्स माइनस 7/2। अगर पूछा जाता है तो लिख सकते हो, अदरवाइज इट इज योर आंसर। नाउ फोर्थ वन, e रेज टू पाई अपॉन 3i। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया, अभी तक जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 थे वो थे पोलार फॉर्म में, हमको पोलार फॉर्म दिया था और हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में स्प्लिट करके दिखाना था, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में x प्लस आई वाई करके लाना था। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है जिसे हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आना है। तो चलो देखते हैं, लेट z इक्वल टू 1 इंटू ई रेज टू पाई अपॉन 3i। देखो यहाँ ई रेज टू पाई अपॉन 3i गिवन, सो इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू ई रेज टू पाई अपॉन 3i, क्योंकि हमें जब कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ z इक्वल टू आर इंटू ई रेज टू आई थीटा, तो देखो r इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 इंटू दिस, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, r इक्वल टू 1, और e रेज टू आई थीटा, यहाँ क्या है e रेज टू पाई अपॉन 3i, तो थीटा इक्वल्स पाई अपॉन 3। ये हमें वैल्यूज मिल गई, r इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 3। तो व्हेन वी नो r एंड थीटा, सो वी कैन राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलार फॉर्म। तो चलो सबसे पहले इसका पोलार फॉर्म फाइंड करते हैं कि पोलार फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। Substituting the value, it is equal to 1 into cos pi upon 3 plus I sin pi upon 3. Substituting the value, because pi upon 3 is 60 degree. So 1 into cos 60 is half plus I sin 60. Sin 60 equal to √3/2. Now it is equal to 1/2 plus √3/2 into I, which is of the form x plus I y. So x is half and y equal to √3/2. Now see fifth one, e raised to minus 4 pi upon 3 into I. So this is exponential form. Let z equal to 1 into e raised to minus 4 pi upon 3 into I. Comparing with z equal to r into e raised to I theta. So we get r equal to 1 and theta equal to minus 4 pi upon 3. Therefore, polar form of z equals r into cos theta plus I sin theta can be written as 1 into cos of minus 4 pi upon 3, this is value of theta, plus I into sin minus 4 pi upon 3, this is value of theta. Now, you know very well, जैसा कि मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला बता चुका हूं कि cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta. इसके लिए क्या हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो इट इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस 4 पाई अपॉन 3 माइनस आई साइन 4 पाई अपॉन 3। अब इसके बाद ये 4 पाई अपॉन 3 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, पाई प्लस पाई अपॉन 3, क्योंकि यही हमारे पास फार्मूला होता है। तो इट इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस पाई अपॉन 3 माइनस आई साइन पाई प्लस पाई अपॉन 3। अब देखो कॉस पाई प्लस पाई अपॉन 3 अगर ये ऐड करते हो तो 3 1 जा 3, 3 पाई प्लस पाई, फिर से 4 पाई अपॉन 3, और यहाँ भी पाई प्लस पाई अपॉन 3 बिकम्स 4 पाई अपॉन 3। तो 4 पाई अपॉन 3 कैन बी रिटन एज पाई प्लस
पाई अपॉन 3। मतलब हमें इस फॉर्म में ब्रेक करना है जिसका हमें फॉर्मूला पता है। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो कहीं भी कैसा भी फॉर्म में ब्रेक करोगे, दैट वन इज इनकरेक्ट। नाउ cos pi plus pi upon 3 becomes minus cos pi upon 3, minus I sin pi plus pi upon 3 becomes minus sin pi upon 3. See the formula, cos pi plus theta is minus cos theta and sin pi plus theta becomes minus sin theta. क्योंकि both lies in third quadrant और sin and cos both will be negative in the third quadrant. So both values are negative, but here minus into minus becomes plus in the next step. तो चलो, this is equal to, continue here, cos pi upon 3 that is 60 degree equal to half. So minus half plus, अब यहाँ minus into minus plus, sin pi upon 3 that is sin 60 degree is root 3 upon 2 into I. So it is equal to minus half plus root 3 upon 2 into I, which is of the form x plus iy. So x equal to minus half and y equals root 3 upon 2. Now see sixth question. E raised to 5 pi upon 6 into I. This is exponential form of a complex number. Let z equal to 1 into e raised to 5 pi upon 6 into I. क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कंपेयर भी कर सकते हो 1 से यहाँ पर। तो कंपेयरिंग विथ z इक्वल टू r इंटू ई रेज टू आई थीटा, तो r इक्वल्स 1, ये 1 का कंपेरिजन हो गया, और थीटा इक्वल्स 5 पाई अपॉन 6। अगर मैं r एंड थीटा मालूम है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। तो पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल्स r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस इज फार्मूला फॉर पोलर फॉर्म। So it can be written as 1 into cos 5 pi upon 6 plus I sin 5 pi upon 6. Now it can be written as 1 into cos pi minus pi upon 6 plus I sin pi minus pi upon 6, because 6 1 is 6 pi minus pi, that is 5 pi upon 6, we get this term, and here also pi minus pi upon 6 becomes 5 pi upon 6. Now using the formula, कौन सा formula यहाँ पर है, cos pi minus theta minus cos theta एंड साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव। तो इट इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 6 माइनस कॉस पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6, बिकॉज साइन पाई माइनस पाई बाई 6 इज साइन पाई बाई 6। ये जो पाई है ये फार्मूले में एलिमिनेट हो जाता है, जैसा कि यहाँ भी देख सकते हो कि cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो अपना थीटा क्या है, पाई बाई 6 इन बोथ द टर्म्स। तो इसको हम लोग थीटा को क्या अज्यूम करते हैं, पाई बाई 6, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म में मिल जाते हैं। तो माइनस कॉस पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन पाई अपॉन 6। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, माइनस एज इट इज cos पाई अपॉन 6 रूट 3 अपॉन 2 प्लस आई इंटू साइन पाई अपॉन 6 हाफ। So it is equal to minus root 3 upon 2 plus half I, which is of the form x plus iy, where x equals minus root 3 upon 2 and y equals half. ये रहे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल द 6 क्वेश्चंस। तो ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो गए, और अगर कोई भी डाउट है किसी को तो क्वेश्चंस में जा करके पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जो स्टूडेंट न्यू हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस इमीडिएटली मिलते रहेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 plus 2i upon 1 minus 3i. So this is complex number 1 plus 2i upon 1 minus 3i in the form of fraction. So for the solution, let z equal to 1 plus 2i upon 1 minus 3i. तो जैसा कि हमें पता है कि हम पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं कि हमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, मल्टीप्लाइंग बाय conjugate of denominator in numerator and denominator. So therefore z equals 1 plus 2i into 1 plus 3i, which is conjugate of 1 minus 3i upon 1 minus 3i into 1 plus 3i. तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 1 plus 3i and 1 plus 3i. तो open the bracket in the numerator, also in the denominator we get z equals 1 plus 3i plus 2i plus 6i square.
अपॉन 1 माइनस 9i स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लीकेबल है। नाउ सिंप्लीफाई, सो z इक्वल्स 1 as it is 3i plus 2i becomes 5i and 6 into I square, that is I square is what? Minus 1. So 6 into minus 1 becomes minus 6. Here I square is minus 1, so 1 minus 9 into minus 1, that is 1 plus 9. Therefore z equals 1 minus 6 minus 5 plus 5i upon 10. Therefore z equals minus 1 by 2 plus 1 upon 2i. Comparing with z equals x plus iy. Therefore x equal to minus 1 upon 2 and y equals 1 by 2. ओके, तो x इक्वल टू माइनस हाफ एंड y इक्वल टू हाफ, ये हमें वैल्यूज मिल गए। अब इसके बाद मीन्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्रॉपर फॉर्म में आ गया। यहाँ पर z इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन 2i। नाउ फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज अ फॉर्मूला। देयरफॉर मॉड z इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 by 4 प्लस 1 by 4। ऐड कर लेते हैं 1 by 4 प्लस 1 by 4 बिकम्स 2 by 4 विच इज 1 अपॉन 2। तो मॉड z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 by 2, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। So finally mod z equal to 1 upon root 2. Now we need to find argument of z. So argument of z equal to theta equals tan inverse b upon a, or you can say tan inverse y upon x. तो दोनों ही फॉर्म में हमारा मेन फॉर्मूला थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a, और हमने यहाँ पर एक्स वाई के टर्म्स यूज किए हैं, तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x. Therefore arc z equals tan inverse half upon minus half y upon x. तो हाफ अपॉन माइनस हाफ बिकम्स माइनस 1। तो आर्क z इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1। अभी देखते हैं किसकी वैल्यू है। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4, क्योंकि माइनस 1 देखो tan 45 डिग्री या tan पाई बाई 4 इज 1, बट माइनस 1 तो माइनस tan पाई बाई 4। अब इसको हमें फॉर्मूले में लेके जाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई अपॉन 4, क्योंकि tan पाई माइनस पाई अपॉन 4 होता है माइनस tan पाई बाई 4। ये फॉर्मूला याद रखो कि tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो हमारा थीटा यहाँ पर क्या है? पाई अपॉन 4। तो इसके लिए हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। तो tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई अपॉन 4। अब इसको हम क्या करते हैं, tan इनवर्स tan, देखो 4 1 जा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई अपॉन 4, क्योंकि हमको यहाँ tan को एलिमिनेट करना है। तो tan इनवर्स एंड tan एलिमिनेटेड, देयरफॉर ऑर्ग z इक्वल्स 3 पाई अपॉन 4। ये हमें मिल गया वैल्यू, या इसी को हम बोलते हैं थीटा। थीटा इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 एंड मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स mod z equal to 1 by root 2 and arc z, or you can say argument of z or theta or amplitude, इसके इतने नाम हैं, equals 3 pi upon 4। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक स्टॉप करते हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।